Hello students, welcome back to online sessions of Grid tutorial. In the last session we have started with communication. Now as we all know, communication is an art of exchanging ideas, fact, information, etc. from one person or entity or institute to another. The process of passing an information from one person to another with the help of some medium is termed as communication. We have already started with types of communication. The various types of communication are postal and modern means of communication. We have completed with postal services. Now see, types of postal services are mail service, specialized postal services, money remittance services, and retail services. We have already completed with mail services and specialized postal services. Now in today's session we will discuss money remittance services, retail services, and the other type of communication, that is modern means of communication. Now let's start with money remittance services, that is money transfer services. First one is electronic money transfer, EMO. A money order is an order issued by the post office for the payment of a sum of money to the person whose name is mentioned in the money order. It is sent through the agency of post office. A payee is the person whose name नेम्ड इन मनी ऑर्डर एज अ पर्सन टू होम द मनी इज़ टू बी पेड. अभी पेई कौन है? पेई वो पर्सन है जिसको वो ऑर्डर, मनी ऑर्डर जो है वो पे होने वाला है, जो मनी ऑर्डर जिसे मिलने वाला है. द एडवांटेज ऑफ सेंडिंग मनी टू समवन थ्रू मनी ऑर्डर इज़ दैट द मनी इज़ डिलीवर एट द हाउस और हिज प्लेस ऑफ स्टे. इट इज़ सेंड थ्रू द एजेंसी ऑफ पोस्ट ऑफिस. और पेई वो पर्सन होता है जिसको पैसा मिलने वाला है, जिसको मनी ऑर्डर जिसके नाम पे होता है, जो मनी ऑर्डर में जिसका नाम मेंशन होता है वो पेई होता है. एंड सबसे बड़ा एडवांटेज मनी ऑर्डर का है, द अमाउंट इज़ रीच्ड एट द डोर स्टेप. जो पैसा है, जो मनी है यहाँ पे, इट इज़ डिलीवर्ड एट द हाउस और इज प्लेस ऑफ स्टे. The main benefit of sending money to someone through money order is that the money is delivered at the house or his place of stay. Now second one is instant money order, IMO. India Post present instant money order, IMO, the instant online money transfer services that is instant, convenient, reliable and affordable. IMO is an instant web-based money transfer service through post office in India between two resident individual in Indian territory. One can transfer money from rupees 1,000 to 50,000 from designated IMO post offices. It is simple to send and receive money. सर्विस है ये इंस्टेंट है. इंस्टेंट मतलब क्विक सर्विस है एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल. IMO इज़ एन इंस्टेंट वेब बेस्ड मनी ट्रांसफ़र सर्विस थ्रू पोस्ट ऑफिस. जो दो रेसिडेंट विद इन इंडियन टेरिटरी के बीच में वो ट्रांसफ़र पॉसिबल है. नाउ नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र. दिस वन इज़ इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र. Money transfer service scheme is a quick and easy way of transferring personal remittance from abroad to beneficiaries in India. Only inward personal remittance are permitted. Department of Post, Government of India with the Western Union Financial Service, a state of the international money transfer service, is now available through the post office in India, which enable instant remittance of money from around 195 countries and territories to India. See, यहाँ पे only inward personal remittance are permitted. इसका मतलब है कि सिर्फ inward रेमिटेंस पॉसिबल है, इनवर्ड ट्रांसफ़र पॉसिबल है. क्विकली किसी दूसरे कंट्री से आपके कंट्री में फ्रॉम अब्रॉड टू बेनिफिशियरी इन इंडिया पैसा क्या हो सकता है? ट्रांसफ़र हो सकता है. मनी रेमिटेंस सर्विसेज में फर्स्ट वन है इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र, जहाँ पे मनी ऑर्डर डायरेक्टली आपके घर पे. द बिगेस्ट एडवांटेज ये होता है कि मनी ऑर्डर जो है वो आपके घर पे पहुँचता है और जो पेई है उसका नाम, पेई वो पर्सन है जिसका नाम मनी ऑर्डर में मेंशन होता है एंड उसको
एंड उसको वो बेनिफिट मिलता है एंड वो पैसे उसको मिलते हैं। नेक्स्ट है इंस्टेंट मनी ऑर्डर एंड द लास्ट वन इज़ इंटरनेशनल मनी ऑर्डर। इंस्टेंट मनी ऑर्डर में आपको इंस्टेंट सर्विस मिलता है which is convenient, reliable and affordable. It is an instant web-based money transfer service through post office in India between two resident individual in Indian territory. मतलब ये सर्विसेज जो है, ये सर्विस जो है, ये सिर्फ दो रेसिडेंट, जो दोनों रेसिडेंट है, दोनों इंडियन टेरिटरी में है, तो ये उनके बीच में ये सर्विस, मतलब उनके बीच में ये ट्रांसफ़र हो सकता है। द लास्ट वन इज़ इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। ये सबसे सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ इनवर्ड, ओनली इनवर्ड पर्सनल ट्रांसफ़र आर परमिसिबल, आर परमिटेड। मतलब यहाँ पे सिर्फ इनवर्ड ट्रांसफ़र पॉसिबल है। इट इज़ एन ईजी वे ऑफ ट्रांसफरिंग पर्सनल रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड टू बेनिफिशियरी इन इंडिया। सिर्फ जो इनवर्ड, मतलब यहाँ पे यू कैनॉट सेंड मनी इन अदर कंट्री, बट वहाँ से आपके कंट्री में ये सर्विस के थ्रू वहाँ से आपके कंट्री में मनी ट्रांसफ़र हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रिटेल सर्विसेज। पहला है रिटेल पोस्ट। थ्रू रिटेल पोस्ट द डिपार्टमेंट offer convenience to the general public by making third party product and service available in their vicinity through selected post office. Under retail post, a range of services are offered including collection of electricity bill, collection of taxes, collection of other bill and fee for the government. Further, under retail post, the post offices sells application form. तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी का जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसको अवेलेबल करते हैं इन देयर विसिनिटी, इन देयर लोकल एरिया थ्रू सेलेक्टेड पोस्ट। मतलब थर्ड पार्टी का कोई, समझो कोई प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, वो लोग यहाँ पे वो अवेलेबल करते हैं। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन, पोस्ट ऑफिस सेल एप्लीकेशन फॉर्म। अभी कितने सारे मतलब गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल होते हैं। तो ये जो रिटेल पोस्ट है, ये लोग थर्ड पार्टी का जो काम है, थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट है, ये लोग अपने एरिया में क्या करते हैं, अवेलेबल करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ई पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ई पोस्ट सर्विस। थ्रू ई पोस्ट कस्टमर कैन सेंड देयर मैसेज टू any address in India with a combination of electronic transmission and physical delivery through a network or more than 1,55,000 post offices. E-post send messages as a soft copy through internet and at the destination it will be delivered to the addressee in form of hard copy. मतलब देखो यहाँ पे इसका वर्किंग कैसे है। ई पोस्ट जो है वो आपका जो मैसेज है वो सॉफ्ट कॉपी में सेंड करेगा थ्रू इंटरनेट। एट द डेस्टिनेशन, जहाँ पे वो सेंड किया है वहाँ पे वो जो एड्रेस है वहाँ पे इट विल बी रिसीव्ड इन हार्ड कॉपी। ई पोस्ट कैन ऑल्सो बी अवेल्ड बाय कॉर्पोरेट कस्टमर्स बाय हैविंग अ बिजनेस एग्रीमेंट विथ इंडिया पोस्ट। कॉर्पोरेट कस्टमर विल गेट स्पेशल ई पोस्ट रेट एंड अदर वैल्यू एडिशन। अभी ई पोस्ट जो है ये कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए बहुत, मतलब ये कॉर्पोरेट कस्टमर ये बहुत यूज़ करते हैं बाय हैविंग अ बिजनेस एग्रीमेंट विथ ई पोस्ट। अभी कॉर्पोरेट कस्टमर जो है उनके लिए स्पेशल ई पोस्ट रेट होता है ना, अदर वैल्यू एडिशन भी उनको मिलता है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड विथ पोस्टल सर्विसेज। अभी देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में दो टाइप्स थे। पहला था पोस्टल सर्विसेज एंड वी हैव कंप्लीटेड विथ पोस्टल सर्विसेज। अभी देखो टाइप्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज भी हमने देखा। आप इससे पहले वाला जो लास्ट सेशन था वहाँ पे हमने मेल सर्विसेज डिस्कस किया था, स्पेशलाइज पोस्ट डिस्कस हुआ था, एंड टुडे वी हैव कंप्लीटेड विद मनी रेमिटेंस सर्विसेज एंड रिटेल सर्विसेज. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद पोस्टल सर्विसेज. नाउ द अदर वन इज, नाउ वी विल सी modern means of communication. Modern means of communication, first one is courier service. An individual or a company responsible for the exchange of item between two or more parties is known as courier services. Courier services are usually employed by a company and they charge a flat rate
to the party using the courier services. Courier services are different from ordinary mail services by features such as speed, security. अभी जो मेल सर्विसेज का जो है ये courier services उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बिकॉज इसका स्पीड अलग होता है, सिक्योरिटी ज़्यादा होता है, ट्रैकिंग यहाँ पे यू कैन ट्रैक आपका जो कुरियर है वो कहाँ पे पहुँचा है, यू कैन ट्रैक, राइट. सिग्नेचर एंड शिफ्ट डिलीवरी सिस्टम टाइम, मतलब ये यहाँ पे जो डिलीवरी है वो बहुत आपको टाइमली डिलीवर हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा डिले नहीं होता. एज अ प्रीमियम सर्विस courier service is usually more expensive than usual mail service. Some example of courier service is DHL, DTDC, UPS etc. See जो यहाँ पे ये प्रीमियम सर्विसेज है, मतलब यहाँ पे आपको कम टाइम में आपका डिलीवरी पहुँचता है एंड मतलब उसका इसमें डिले नहीं होता, आपको क्विक सर्विस होता है एंड आप इसको ट्रैक कर सकते हो. तो ये आपको एक तरह का प्रीमियम सर्विस है. बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन यूजुअल मेल सर्विस. अभी नेक्स्ट है इंटरनेट. अभी इंटरनेट के बारे में आप सबको बहुत ज़्यादा पता है. द इंटरनेट इज़ द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल suite to link devices worldwide. It is a network of networks that consist of private, public, academic, business and government network of local to global scope, linked by a broad array of electronics, wireless and services such as interlinked hypertext documents and application of World Wide Web, इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड फाइल शेयरिंग. तो इंटरनेट से ये सारी चीज़ें पॉसिबल है जो आपको, आप इससे फाइल शेयर कर सकते हो, आप डॉक्यूमेंट्स आप शेयर कर सकते हो. ये द इंटरनेट इज़ द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टू लिंक द डिवाइस. यहाँ से आप ग्लोबली आप लोगों से क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. तो इंटरनेट जो है इट इज़ अ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड जिसका एप्लीकेशन अभी बहुत ज़्यादा होता है. नाउ नेक्स्ट इज़ ईमेल. ईमेल, सी दिस आर द थिंग्स यू आर वेरी मच अवेयर, आप इसके बारे में जानते हो. ईमेल, electronic mail is a method of exchanging mail between people using electronic device. Today email system are based on a store and forward model. Email serve, accept, forward, deliver and store message. अभी ईमेल सर्वर जो है वो एक्सेप्ट करता है, फॉरवर्ड करता है, डिलीवर करता है एंड मैसेज को स्टोर भी करता है. नीदर द यूज़र नॉर देयर कंप्यूटर आर रिक्वायर्ड टू बी ऑनलाइन साइमल्टेनियसली. दे नीड टू कनेक्ट ओनली ब्रीफली, टिपिकली टू मेल सर्वर और अ वेब मेल इंटरफेस फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक टू सेंड और रिसीव मैसेज. सी यहाँ पे आपको पूरा टाइम कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है. जब भी आपको मेल सेंड करना है तो वो टाइम पे आप ऑनलाइन होके, वो टाइम पे आप मेल क्या कर सकते हो, आप कनेक्ट होके आप मेल को सेंड कर सकते हो. यू डोंट नीड टू बी ऑनलाइन साइमल्टेनियसली. आपको दो, मतलब आप जो सेंडर है, रिसीवर है, उन दोनों को साइमल्टेनियसली ऑनलाइन होने की ज़रूरत नहीं है एंड पूरा टाइम ऑनलाइन होने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप मतलब आपका जब भी आप कनेक्ट होके, नेट से कनेक्ट होके आप अपना मेल सेंड कर सकते हो एंड वो पर्सन जब भी अपना नेट ऑन करेगा तो उसको मेल क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा. नीदर द यूज़र नॉर देयर कंप्यूटर्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑनलाइन साइमल्टेनियसली. दे नीड टू कनेक्ट ओनली ब्रीफली, टिपिकली टू अ मेल सर्वर or a webmail interface for as long as it take to send or receive messages. With this we have completed this topic and we have completed this chapter, that is business services. With this I would like to end this session. Thank you so much.